this is the chapter number 13, Functioning of Indian Democracy. And in the previous video, we had studied about the functions of legislature and Indian Parliament. And today we will read about the powers of the Lok Sabha. The powers of the House of the People are as under: legislative power, financial power, control over the executives, amendment in constitution, election of the president and the vice president, forum of people's view, and miscellaneous functions. Main function of the House of the People is framing of laws. As per the constitution, powers of House of the People and Council of States are equal in respect of framing of law, but in practice the House of People is more powerful. Financial powers. The constitution had made the House of People powerful so far as financial matters are concerned. Control over the executives. According to the constitution, the Council of Ministers is responsible to the House of the People. The Council of Ministers can be functional till it enjoys the confidence of the House of the People. Amendment in constitution. The House of the People and the Council of States together can make amendment in the constitution. Election of the president and the vice president. The president is elected by the members of an electoral college constitution of the elected members of both houses of parliament and the elected members of the legislative assemblies of the state. The vice president shall be elected by the members of an electoral college consisting of members of both houses of parliament. Forum of people's view. Since the House of the People in the House of Members elected by the public, therefore, the views expressed by the members are considered to be the view of the people. Miscellaneous functions. Lok Sabha can bring a motion of impeachment of the President. It can discuss the proposal passed by the Council of States for removal of the Vice President. It can discuss the proposal for impeachment of the judges of Supreme Court and High Court. It is necessary for the Lok Sabha to confirm the emergency proclaimed by the President within a month. Otherwise, such proclamation shall automatically be nullified. तो चिल्ड्रन, लोकसभा का सबसे पहला कार्य तो है कि कानून का निर्माण करना, लॉ को बनाना। संविधान ने दोनों ही, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा को, बराबर शक्तियां दी हैं, लेकिन व्यवहार में लोकसभा ज़्यादा शक्तिशाली होता है। अब फाइनेंशियल व्यू से देखा जाए तो इसमें इस व्यू से भी जो लोकसभा है उसे ही शक्तिशाली बनाया गया है। जो वित्त विधेयक होते हैं वो लोकसभा में ही पारित किए जाते हैं। फिर कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव्स। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार जो मंत्रिमंडल होता है वो लोकसभा के लिए उत्तरदायी होता है। मंत्रिमंडल तब तक क्रियाशील रह सकता है जब तक लोकसभा का उसमें विश्वास हो। लोकसभा राज्यसभा के साथ मिलकर संविधान में संशोधन कर सकती है। राष्ट्रपति का चुनाव एक इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग के मेंबर्स के द्वारा, मीन्स निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है, जिसमें राज्यसभा और लोकसभा दोनों के सदस्य होते हैं और राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य भी उसमें होते हैं। और इसी तरह से लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य मिलकर के उपराष्ट्रपति का चुनाव भी करते हैं। लोकसभा चूंकि जनता के विचारों का एक स्टेज है, इसलिए वहाँ पर जो भी विचार व्यक्त किए जाते हैं वो जनता के विचार ही माने जाते हैं। इसके साथ साथ जो लोकसभा होती है वो राष्ट्रपति के ऊपर इम्पीचमेंट मीन्स महाभियोग भी लगा सकती है। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए राज्यसभा के पास प्रस्ताव पर चर्चा करती है। उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के जो जजेस होते हैं उनके विरुद्ध भी वो इम्पीचमेंट मीन्स महाभियोग लगा सकते हैं। राष्ट्रपति, यदि संकट काल में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है तो उसकी पुष्टि भी 1 माह के भीतर लोकसभा द्वारा होना अनिवार्य होता है, नहीं तो राष्ट्रपति शासन जो है वो स्वतः ही रद्द हो जाता है। मतलब राष्ट्रपति शासन के लिए लोकसभा की पुष्टि होना जरूरी है। Now the Council of State means Rajya Sabha. The second house of parliament is known as Council of State, Rajya Sabha. It is also called the upper house of parliament. It is a permanent house. It cannot be dissolved. अब राज्यसभा जो है वह परमानेंट हाउस है और वह डिसॉल्व नहीं किया जा सकता है। इसे अपर हाउस भी बोला जाता है।
So children, you will read the membership of the Council of States. राज्यसभा की सदस्यता के लिए वही योग्यताएं हैं निर्धारित जो कि लोकसभा के सदस्यों के लिए है। सिर्फ यहाँ पर अंतर ये है कि जो लोकसभा है वहाँ के सदस्यों की वहाँ के लिए सदस्यता लेना हो तो जो मिनिमम एज है वो 25 ईयर्स है, लेकिन राज्यसभा के लिए वही मिनिमम एज जो है वो 30 ईयर्स होना चाहिए व्यक्ति, तभी वो जो है वो राज्यसभा का सदस्य बन सकता है। तो मेंबरशिप के लिए और क्वालिफिकेशन के लिए आप इसे रीड करेंगे। नाउ प्रोसीजर फॉर इलेक्शन ऑफ मेंबर्स। Members of the Council of State are elected by members of legislative assemblies of the state by proportional representation system. The Council of State shall not be subject to dissolution like the House of People. The tenure of its members is 6 years. 1/3 of its members retire after every 2 years, and in their place, new members are elected. Thus, there is continuity in the tenure of Council of States. अब राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका जैसे जनता लोकसभा के लिए चुनाव करती है वैसे राज्यसभा के लिए प्रत्यक्ष रूप से चुनाव नहीं होता है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है और इसे लोकसभा की तरह भंग नहीं किया जा सकता, हटाया नहीं जा सकता। इसका जो समय है वो 6 ईयर है, जो कार्यकाल है उसका 6 ईयर्स का होता है, और उसके 1/3 मेंबर्स को हर सेकेंड ईयर वो सेवानिवृत्त कर दिए जाते हैं, रिटायर कर दिए जाते हैं, और उनके स्थान पर नए सदस्यों का चुनाव कर दिया जाता है। इस तरह से ये कंटिन्यूटी बनी रहती है। और राज्यसभा के 2 पद अधिकारी होते हैं, एक तो पहला तो होगा सभापति और दूसरा होगा उपसभापति, दैट मीन्स चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन। So here is giving the powers of the Council of States. So powers of the Council of States are legislative power, financial power, control over the executives. So children, you will read the power. I am giving you just summary. तो जो राज्यसभा और लोकसभा है दोनों के पास ये अधिकार होता है कि लॉ बना सके, लेकिन कोई भी विधेयक तब तक किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, कोई भी विधेयक बना दिया जाए, लेकिन वो कानून तभी बनता है जबकि दोनों सदन उसे एग्री हो जाए, उसे पास कर दें। कोई भी विधेयक पहले लोकसभा में ही प्रस्तुत होता है, और फाइनेंशियल मामलों में देखा जाए तो फाइनेंशियल पावर राज्यसभा के पास नहीं के बराबर होती हैं। चिल्ड्रन, यू विल रीड द अदर पावर्स। The procedure of framing law by the parliament. Most important function of the parliament is to frame laws for the country. The parliament has power to frame laws on subjects contained in central list, concurrent list, and during emergency on subjects from the state list. The bills for an enactment are presented in the parliament. The bills are of 2 types, ordinary bill and money bill. Ordinary bill can be presented in any of the house, but money bill can be presented only in the house of the people with the permission of the president. तो जो हमारी पार्लियामेंट है उसका सबसे महत्वपूर्ण का है लॉ का निर्माण करना, कानून बनाना। तो पार्लियामेंट को सेंट्रल लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट और इमरजेंसी टाइम में जो भी सब्जेक्ट्स आते हैं उनके ऊपर जो भी लॉ बनाने का अधिकार जो है वो हमारे पार्लियामेंट को है। अब हमारी पार्लियामेंट में 2 तरह के बिल्स होते हैं, एक ऑर्डिनरी बिल, दूसरा मनी बिल। ऑर्डिनरी बिल जो है वो किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, किंतु जो मनी बिल होता है वो सिर्फ राष्ट्रपति की परमिशन से लोकसभा में ही प्रेजेंट किया जा सकता है। द प्रोसीजर ऑफ पासिंग अ बिल। तो चिल्ड्रन, किसी भी बिल को पास होने के लिए उसे 7 स्टेज से होकर के गुजरना पड़ता है। फर्स्ट रीडिंग और प्रेजेंटेशन ऑफ द बिल, सेकेंड रीडिंग, कमेटी स्टेज, देन रिपोर्ट स्टेज, थर्ड रीडिंग, सेंडिंग बिल इन द सेकेंड हाउस, एसेट ऑफ द प्रेसिडेंट। तो चिल्ड्रन, मैं इसे शॉर्ट में बता रही हूँ, यू हैव टू रीड दिस डीपली। तो फर्स्ट रीडिंग में के समय केवल जो उसका हेडिंग होती है, जो शीर्षक होता है उसका, उसे पढ़कर सुनाया जाता है। जब सेकेंड रीडिंग होती है तो उसकी हर एक उसकी जो कॉपियाँ होती हैं वो एक वहाँ पर प्रेजेंट सदस्यों को दी जाती है, और बाकी उसमें डीपली नहीं होता है, बस उसका एक फ्रेमिंग देखी जाती है कि किस चीज़ पर ये बेस्ड है। अब कमेटी स्टेज में जाकर के क्या होता है कि ये क्या करते हैं, छोटे छोटे से ग्रुप बना देते हैं, और उस ग्रुप में
उस जो भी विधेयक है उसके ऊपर बहुत गहराई से वो जो कि हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उस पर बहुत गहराई से उस पर विचार करते हैं और उसके बाद उसमें जो भी यदि कोई संशोधन होता है तो उसे करते हैं। अब रिपोर्ट स्टेज में क्या होता है कि जो भी संशोधन वो समिति ने किया, जो उन ग्रुप ने किया, उनकी जो कॉपीज होती हैं वो बाकी के सदस्यों को बांट दी जाती हैं और वह सभी लोग अपने हिसाब से उस में डिबेट करते हैं, वाद विवाद करते हैं कि ऐसा होना चाहिए, नहीं ऐसा होना चाहिए। अब थर्ड रीडिंग जो होती है ये रिपोर्ट स्टेज के बाद की रीडिंग स्टेज होती है और इसमें लगभग लास्ट स्टेज होती है कोई भी विधेयक की। उस स्तर पर हर विचार पर हर मतलब जो विधेयक है उसकी हर भावना पर ना विचार करके सिर्फ मूल भावना पर विचार किया जाता है, डीपली ना करके कि मूल उद्देश्य उसका क्या है उस पर विचार किया जाता है और इसमें इस स्टेज में कोई संशोधन नहीं किया जाता। और फिर सिक्स्थ स्टेज में जब एक सदन में विधेयक स्वीकृत हो जाता है तो फिर उसे दूसरे सदन में भेजने की प्रक्रिया शुरू होती है। दूसरे सदन में भी उसे सेम प्रोसेस से गुजरना होता है। और लास्ट स्टेज सेवेंथ स्टेज में जब दोनों सदन में विधेयक पारित हो जाता है तब उसे राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेज दिया जाता है और यदि राष्ट्रपति ने स्वीकृति दे दी तो वही विधेयक फिर लॉ बन जाता है, कानून बन जाता है। तो ये प्रोसीजर था कोई भी विधेयक के पास होने का, लॉ बनने का। नाउ मनी बिल्स। Money bills are passed in a different manner. Money bills are introduced only in House of the People. The House of the People, after passing a money bill, sends it to the Council of States for consideration. And it has to pass it within 14 days. Even if the Council of States suggests some amendments, the bill is deemed to have been passed in the same form in which it was passed by the House of the People. अब जो मनी बिल होता है, मनी बिल दूसरे तरीके से पारित होते हैं। मनी बिल जो है सिर्फ लोकसभा में ही प्रेजेंट किए जाते हैं और मनी बिल जो है उसमें लोकसभा में एक बार यदि वो पारित हो गया तो फिर उसे राज्यसभा में भेजा जाता है और राज्यसभा को 14 डेज के अंदर उसे पारित करना होता है, उस पर एग्री होना होता है। अब जो राज्यसभा है वह उसमें किसी भी तरह का कोई संशोधन नहीं कर सकती और करती भी है तो लोकसभा अपनी जैसा उन्होंने प्रेजेंट किया था उसी जैसा उन्होंने पारित किया था उसी हिसाब से वो पारित कर सकते हैं। तो मनी बिल की पावर जो है वो लोकसभा के पास कहलाई। नाउ एग्जीक्यूटिव्स। The executives is another important organ of the government. For efficient functioning of all the organs of the government, it is the executive which is responsible. Is in our country we have federal system, therefore the executive is of two types: central executive for the central administration and state executive for administration in the states. अब हमारी गवर्नमेंट का दूसरा इम्पोर्टेंट ऑर्गन एग्जीक्यूटिव है। हमारे देश में फेडरल सिस्टम में संघीय व्यवस्था होने के कारण जो हमारी एग्जीक्यूटिव्स हैं उसके दो स्वरूप है। पहला तो ये पूरे देश को चलाने के लिए एक तो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन होता है और दूसरा स्टेट्स को चलाने के लिए स्टेट एग्जीक्यूटिव होते हैं। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए सेंट्रल एग्जीक्यूटिव और स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए स्टेट एग्जीक्यूटिव होते हैं। द प्रेसिडेंट। द हेड ऑफ द इंडियन यूनियन इज द प्रेसिडेंट. The President is elected by an electoral college. It comprises members of both the House and elected members of the State Legislative Assembly. Qualification for the post of President: he should be citizen of India, should have attained 35 years of age, should have qualifications to become member of Parliament, should not be on any office of profit in the Union or any state government. इंडियन यूनियन का जो हेड है वो प्रेसिडेंट होता है, राष्ट्रपति होता है और राष्ट्रपति को वही निर्वाचक मंडल उसका चुनाव करता है और निर्वाचक मंडल जो है वो जो हमारी पार्लियामेंट है उसके दोनों हाउसेस के जो उसके सदस्य होते हैं वो और जो स्टेट्स की जो विधानसभा होती हैं उनके जो सदस्य होते हैं वो सारे उनकी सहमति से जो राष्ट्रपति होता है उसका चुनाव होता है। अब इनकी क्वालिफिकेशन वही है कि वह भारत का नागरिक हो, आयु जो हो इसकी 35 ईयर्स हो से ज़्यादा हो और वह लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखते हो, साथ ही साथ वो किसी भी तरह की गवर्नमेंट लाभ उनको ना मिल रहा हो। Powers of the President. According to the Constitution, all the powers of the central executive vest in the President.
she will use these powers or cause to be used by the subordinate staff. As per 42nd amendment of the constitution, it has been provided that the president shall function only according to the advice of the cabinet, and such advice shall be binding upon him. Powers of the president are of two types: under ordinary conditions or powers during peace time, under extraordinary conditions or power during emergency. अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार जो भी सेंट्रल की जो भी कार्यपालिका है उसकी सारी शक्तियां जो है भारत के प्रेसिडेंट में निहित होंगी। वह इन शक्तियों का प्रयोग स्वयं और उनके अंडर में जो बाकी कर्मचारी हैं उनके लिए कर सकेगा। अब 42nd अमेंडमेंट के अनुसार संशोधन किया गया, उसके अनुसार राष्ट्रपति जो है वह बाकी के जो मंत्रिमंडल उनके परामर्श से ही कार्य करेगा और उनका परामर्श मानने के लिए वो बाध्य भी होगा, उसे मानना ही होगा, अपनी मनमर्जी नहीं चला सकता है। राष्ट्रपति के दो प्रकार की पावर्स हैं। पहला तो यह है कि यदि साधारण परिस्थितियां हैं, सिंपल हैं, शांति काल में उसकी अलग पावर्स रहती हैं पीस टाइम में, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशंस में यदि कोई असाधारण परिस्थितियां आ जाती हैं या कोई इमरजेंसी पीरियड आ जाता है तो इस समय में जो राष्ट्रपति की शक्तियां हैं वह बहुत ज़्यादा पावरफुल होती हैं। Children, you will read the powers of the executive and I will explain it in the next video. Children, you have to read the chapter deeply and word to word. I am giving you only summary.